Hello student, good morning. Today we will learn chapter 2 family traditions. Kulasya Achara family traditions. So we learn how bird Jataks follow his family traditions and his mother advised that after he follows his family traditions. Kulasya Acharam. Right from ancient time in Sanskrit, the fable literatures have been popular. In Sanskrit literatures, whether is in Jataka tables or Panchatantra, or the Hitopadesha in Sanskrit literatures. Hitopadesha in Sanskrit literatures. In every book, animals are the character throughout which different tales has been imaginatively written. Fables are created even today. One such fable is presented here. A bird called the Chatak drinks only rainwater. This is a tradition of the Jataka race. Every child born into the Jataka family follow his traditions till today. Once, when a child of Jataka family is so troubled by thirst that not heeding the advice of his mother, he gets ready to break this tradition. By chance, he heard the conversations between a poor farmer and his son. Inspired by the conversations that he hears between the poor farmer and his sons, he goes back to his mother and show his willingness to follow the custom of his race. From this story, we will be inspired to follow the age-old traditions and customs in order to make our life better. These modern fables is based on the protic belief that Chatak lives only on raindrops. The baby Chatak does not want to follow the family traditions. It is too thirsty to care for the traditions. In spite of its mother's pleading, the baby Chatak proceeds to go to the pond. On the way, the dialogue between the old farmer on the death bed and his young son is heard by the baby Chataks, and this convinces the young bird the importance of preserving traditions. In Sanskrit literatures, Chatak and Chakor are the two birds that represent undivided loyalty. Chakor is said to feed on moonbeams. While reading such a story, फर्स्ट हम देखेंगे कि इस स्टोरी में एक चातक शिशु होता है. चातक शिशु होता है. एक बार उसे बहुत ही प्यास लगती है. तो प्यास लगने के बाद वो अपनी माता के पास जाता है. बट ये चातक जो बर्ड्स होता है उसका एक फैमिली ट्रेडिशन होता है कि जब बारिश होती है
तो उसका ही वो पानी पी सकते हैं, वो कोई जलाशय का पानी नहीं पी सकते हैं। तब वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे बहुत ही प्यास लगी है और अभी मैं बादल भी नहीं देख रहा हूँ और बारिश भी नहीं देख रहा हूँ, तो मैं जलाशय में पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने बोला कि हम जलाशय का पानी नहीं पी सकते, हम तो केवल जो बारिश होती है उसका ही पानी पी सकते हैं। ये हमारा फैमिली ट्रेडिशंस है। और तू जलाशय में पानी नहीं पी सकता। बाद में जातक शिशु बोलता है कि माँ, मुझे तो बहुत ही प्यास लगी है और अभी मैं आकाश में एक भी बादल नहीं देख रहा हूँ। कभी बादल बरसे और कभी मैं बादल का पानी पी सकूं, वो मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं जलाशय में पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। तो जो जातक शिशु होता है उसकी माँ उसे फिर से बोध देती है कि बेटा, हमारे एक कुल का ट्रेडिशन नहीं है, हमें हमारे कुल के ट्रेडिशन का हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो तुम जलाशय का पानी नहीं पी सकते हो, तुम्हें प्यास को सहन करना होगा और बारिश की प्रतीक्षा करनी होगी। अपनी माता का कथन सुन के जो जातक शिशु था वो जलाशय के पानी पीने के लिए जाता है, बट मार्ग में उसे विश्राम करना होता है। तो वो एक पेड़ के समीप रुक जाता है और वो पेड़ के समीप एक किसी का गृह होता है, गृह यानी कि किसी का घर होता है। तो वहां पे वो खड़ा रहता है। तो वहां पे वो एक ओल्ड फादर और उसके सन दोनों की बात सुनता है। और जो ओल्ड फादर होते हैं वो फार्मर होते हैं और वो वृद्ध हो गए होते हैं और वो मरण पथारी पे पड़े होते हैं। तब जो उसका पुत्र था वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि पिताजी, मुझे आज रास्ते में एक धन की थैली मिली है। वो धन की थैली पाकर मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि हमारी जो दरिद्रता है वो तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने जैसे ही धन की थैली लेने के लिए हाथ आगे किया, तब मुझे आपका उपदेश याद आया। मुझे आपका उपदेश की स्मृति हुई कि जो दूसरे का धन होता है वो हमें लेना चाहिए नहीं, और वो हमारा फैमिली ट्रेडिशंस है। आथी मैंने वो धन को वहीं पे पड़े रहने दिया। तो बाद में जो ये जातक बड़ होता है वो ये सब सुनता है और बाद में सोचता है कि ये देखो, मरण पथारी पे पड़े हुए एक वृद्ध पिता और पुत्र की तो एक कैसी अपनी फैमिली ट्रेडिशन है, वो कैसे अपने फैमिली ट्रेडिशन का फॉलो करते हैं, और मैं तो वैसे नहीं करता हूँ। मैं अपनी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता हूँ। और मैंने तो क्या किया, मेरा फैमिली ट्रेडिशन तो है कि हम बारिश का ही पानी पी सकते हैं, बट मैंने जलाशय का पानी पीने का निश्चय किया, तो ये उचित नहीं है। और बाद में वो अपनी माता के पास
जाता है और उसे बोलता है कि माँ, अब से मैं हमेशा जलाशय का ही पानी पीऊंगा। मैं हमेशा बारिश का ही पानी पीऊंगा, जलाशय का पानी कभी नहीं पीऊंगा। और अब से मैं हमेशा आपकी बात का आदर रखूंगा, हमेशा आपकी बात को मानूंगा। तो आगे हम देखेंगे, एक चातक शिशु आसीत, एक चातक शिशु आसीत। There was a young one of the Jataka. There was a young one of the Jataka. स एकदा तृषिया पीडित जनन्या समीप व्रजति वदति च अम्ब तृषामा पीडयति. स एकदा means once, he being afflicted by thirst. He being afflicted by thirst, Jananya Samipa Vrajati, goes to mother and Vadati, says, Amba, mother, Trushama Pidayati, I am thirsty. Aham Jalam Patum Ichhami. I am thirsty. I wish to drink water. Samprati मेघजलम न मिलति. Samprati मेघजलम न मिलति. Samprati means now. Now the water of the cloud is not available. अतः तडांगजलमेव पातुमिच्छामि. अतः तडांगजलम पातुमिच्छामि. So I wish to drink the water of the lake only. बाद में वो कहता है, जननी वदति, बालः जननी वदति, मदर सेज, चाइल्ड, वयम तु मेघजलम एवं पिबामः, but we drink only the water of the cloud. We drink only the water of the cloud. तडांगजलम न पिबामि. We do not drink the water of the lake. एषो अस्माकं कुलस्य आचार. एषो अस्माकं कुलस्य आचार. This is the traditions of our family. This is the traditions of our family. अतः त्वं तडांगजलं पातुं न शक्नोषि इति. So you cannot drink the water of the lake. तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हम फिर से रिवाइज कर लेंगे. एक चातक शिशु आसीत. एक चातक शिशु आसीत. There was a young one of the चातक. स एकदा तृषया पीडित. Once he being afflicted by thirst, जनन्या समीपे goes to mother, व्रजति वदति, says mother, अम्ब यानी means mother, तृषामा पीडयति, I am thirsty. अहम जलम पातुम इच्छामि. I wish to drink water now. संप्रति मेघजलम न मिलति. संप्रति मेघजलम न मिलति. संप्रति means now. Now the water of the cloud is not available. अतः तडांगजलम एवं पातुम इच्छामि. आथी मैं जलाशय का पानी पीने की इच्छा रखता हूँ. तो बोलता है आई विश टू ड्रिंक द वॉटर ऑफ द लेक ओनली. जननी वदति, बाल,
Mother says, child, वयं तु मेघजलम् एवं पिबामः. Janani vadati, child, but we drink only the water of the cloud. Tadanga jalam na pibami. We do not drink the water of the lake. Esho asmakam kulasya acharah. This is the traditions of our family. अतः त्वं तडाङ्गजलं पातुं न शक्नोषि इति. So you cannot drink the water of the lake. एक बार हम पहले फिर से ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे. There was a young one of the Chataka. Once he, being afraid by thirst, goes to mother and says, Mother, I am thirsty. I wish to drink water. Now the water of the cloud is not available. So I wish to drink the water of the lake only. Mother says, Child, but we drink only the water of the cloud. We do not drink the water of the lake. This is the traditions of our family. So you cannot drink the water of the lake. सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे हम. चातक शिशु कथयति. The young ones of the Chatak says. The young one of the Chatak says, Amba, mother, mahati me tusha. I am very thirsty. Adhuna akashe meghano na pashyami. Adhuna akashe. Adhuna means now. I do not see the cloud in the sky. I do not see the cloud in the sky. कदा मेघः वर्ष्यति कदाच अहं जलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि. कदाच अहं जलं पातुं शक्नोति इति न जानामि. वो बोलता है, I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of the cloud. अतः तृषया पीडितो अहं तडाङ्गजलं पातुं गच्छामि. अतः तृषया पीडितो अहम. सो जो मुझे प्यास लगी से उससे पीड़ा रहित मैं जलाशय का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ. देखो जो चातक बड़ है वो बाद में उसकी माँ को क्या बोलता है कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है और मैं अभी नहीं रह सकता, तो मैं जलाशय का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ. So being afflicted by thirst, I am going to the lake to drink water. फिर से सेकेंड पैराग्राफ एक बार देख लेंगे कि चातक शिशु कथयति. The young one of the Chataka says, Amba, mother, mahati me trusha. I am very thirsty. Adhuna means now. Akashe meghano na pashyami. Now I do not see the clouds in the sky. Kada मेघवर्ष्यति कदा च अहम मेघम जलम पातु शक्नोमि. तो वो बोलता है कि आई डू नॉट सी द क्लाउड इन द स्काई. आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड विल शोवर्स एंड
when I will be able to drink the water of the cloud. इति न जानामि अतः तृषया पीडितो अहम तडांगजलं पातुं गच्छामि. अतः तृषया पीडितो अहम. So अतः means so. Being affected. तृषया पीडितो. तडांगजलं. By thirsty, I am going to the lake to drink water. I am going to the lake to drink water. फिर से हम उसका ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार देख लेंगे. The young one of the Chataka says, Mother, I am very thirsty. Now I do not see the clouds in the sky. I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of the cloud. So, being affected by thirst, I am going to the lake to drink water. थर्स्ट हमारा पैराग्राफ है. जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति. जननी पुनरपि, पुनरपि माता जो है पुनरपि फिर से चातक जो शिशु होता है उसे बोधयति मीन्स उसे बोध देती है, उपदेश देती है. बालम न अयम अस्माकम कुलाचारम कि चाइल्ड ये हमारा कुल की परंपरा नहीं है. तो जननी पुनरपि मदर अगेन अगेन एडवाइस द यंग चातक चाइल्ड. चाइल्ड न अयम अस्माकं कुलाचारम. दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशंस. कुलाचारः सदैव रक्षितव्यम्. एवं कुलाचारः सदैव रक्षितव्यम् एवं. उसकी माता बोलती है कि दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन. तो फैमिली ट्रेडिशंस हैज टू बी प्रिजर्व्ड. अतः त्वं तडांगजलं पातुं न अर्हसि. So you had better not drink the water of the lake. तृषया सहन कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वं. तृषया सहन कृत्वा. You should be with the thirst and wait for the cloud to shower. फिर से हम एक बार ये पैराग्राफ देख लेंगे. जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति. माता फिर से चातक शिशु को बोध देती है. मदर अगेन एडवाइस द यंग चातक. बालक चाइल्ड न अयम अस्माकं कुलाचारम. दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशंस. कुलाचारो सदैव रक्षितव्य. तो फैमिली ट्रेडिशंस हैज टू बी प्रिजर्व्ड. अतः त्वं तडांगजलं पातुं न अर्हसि. अतः त्वं तडांगजलं पातुं न अर्हसि. So you had better not drink the water of the lake. तृषया सहन कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम् अर्हसि त्वम्. नेक्स्ट बोलती है यू शुड बियर विथ द थर्स्ट एंड वेट फॉर द क्लाउड टू शोवर. तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ. तो हम पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं.
There was a young one of the Chataka. Once he, being afflicted by thirst, goes to mother and says, "Mother, I am thirsty. I wish to drink water. Now the water of the cloud is not available. So I wish to drink the water of the lake only." Mother says, "Child, but we drink only the water of the cloud. We do not drink the water of the lake. This is the traditions of our family. Next, so you cannot drink the water of the lake." Second paragraph. The young one of the Chatak says, "Mother, I am very thirsty. Now I do not see the cloud in the sky. I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of the cloud. So, being afflicted by thirst, I am going to the lake to drink water." Mother again advised the young Chatak. Mother again advised the young Chataka. "Child, this is not our family traditions. The family traditions has to be preserved. So you had better not drink the water of the lake. You should bear with the thirst and wait for the cloud to shower." Next, जनन्याः कथनम् अश्रुत्वा चातकशिशुः तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निर्गच्छन्ति। मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयो वार्तालापं शृणोति। नेक्स्ट क्या होता है कि जनन्या कथनम अश्रुत्वा, जो चातक बड़ होता है, चातक शिशु होता है, वो अपनी माता का कहना मानता नहीं है। और तडांग जलम पातुम तडांग गंतुम निर्गच्छति, जलाशय का पानी पीने के लिए वो जलाशय के पास जाने के लिए वो निकलता है। मार्गे परिश्रांतम, मार्ग में वो विश्राम करने के लिए एक कृषकस्य गृहस्य, एक कृषक की घर के नजीक समीप वो खड़ा रहता है। तदा तातपुत्रयो वार्तालाप शृणोति, तब वो तात मीन्स पिता, पुत्रयो मीन्स की पुत्र, वो दोनों के बीच की वार्तालाप कन्वर्जेशन सुनता है। तो उसका आगे हम देखेंगे जनन्या कथनम अश्रुत्वा, नॉट पेइंग हेड टू मदर्स एडवाइस। चातक शिशु तडांग जलम पातु तडांग गंतुम निर्गच्छन्ति, जो चातक शिशु है वो क्या करता है, तडांग जल मीन्स की जलाशय पे जाता है। द यंग चातका एक्सिट्स to go to the lake to drink the water of the lake. मार्गे परिश्रांत स यदा एक कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयो वार्तालाप शृणोति। On the way,
When being tired, he stands near a farmer's house. He hears the conversations of the father and the son. फिर से जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तडांगजलम पातु तडांगम गन्तु निगच्छति. Not paying heed to mother's advice, the young chatak accepts to go to the lake to drink the water of the lake. On the way, when being tired, he stands near a farmer's house. He hears the conversations of the father and the son. तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे. हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आगे का हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश करेंगे. थैंक यू.